Good evening, everyone. I welcome you all to this highly acclaimed and distinguished Guest Lecture Series 2022, an initiative by Technovanza VJTI. I am Sakshi Vaskar and I am thrilled to be your host for today. Ever since its inception in the year 1887, VJTI has proudly continued the growth of its legacy, filled with brilliance and educational prowess. We have always thrived in nurturing the brightest minds of the society. Over the years, Technovanza has effectively progressed its goal of taking technology to the society by meritoriously passing on the flame of expertise to light more torches. Pioneers of diverse fields, including Dr. APJ Abdul Kalam, Mr. Ratan Tata, Mr. Narayan Murthy, Mr. Boman Irani, and many others have graced Technovanza with their presence while illuminating young minds to new areas of interest. Now, to continue this proud legacy of world's greatest dignitaries, let me introduce to you our guest for today, a powerhouse actor and performer, Mr. Anu Kapoor. Mr. Anu Kapoor is a versatile actor, producer, director, singer, composer, and a renowned anchor as well. Born in Bhopal, he started his career at an early age in acting by working at his father's theatre company. In the 80s, Sir came to Mumbai to make his mark in the Indian film industry. In his illustrious career, spanning over 3 decades, he has worked in more than 30 films, including Gardish, Hum, and the blockbusters Vicky Donor and Saath Khoon Maaf, and has generated tremendous round of applause from the audience for his memorable performances. A major turning point in his career was in 1992 when he hosted the music show Antakshari, where he became the pioneer of the musical reality shows on the Indian television. He was the host of Antakshari for 12 glorious years, and people not just from India but all over the world still adore him as the music man of India. Besides acting, he also hosts a radio show called Suhana Safar with Anu Kapoor, which airs on 92.7 Big FM. Till date, Mr. Anu Kapoor has received 7 glorious awards, including a national award for his role in Vicky Donor and another national award for his directorial debut, Abhay. Sir was last seen in the movie Chehre and has also worked in the recent famous movies like Jolly LLB 2, Dream Girl, Khuda Hafiz, and many more. He will be featuring in his upcoming movie, Sab Moh Maya Hai. So, this small introduction wouldn't do enough justice for your numerous accomplishments. The impact that you have created by your work is the result of your perseverance and simplicity. We are truly honored to have you here. A huge round of applause for our guest, Mr. Anu Kapoor. We also have with us here today the Director of VJTI, Dr. Dhiren Patel, sir. I request Dr. Dhiren Patel, sir, to kindly come on stage and welcome our honorable guest, Mr. Anu Kapoor, with a bouquet of flowers and kindly say a few welcoming words. Good evening, respected Mr. Anu Kapoor and my dear students and faculty members. You know, I was always wondering, this Technovanza is Institute Technology Annual Technical Festival, and then we were inviting celebrities from the liberal art and theatres.
every year. In fact, Nana Patekar was there, then Boman Irani ji was there, and today Anu Kapoor. Sir, the idea is to, though we are trying to produce the brightest of the technical minds, but we would like to balance them to get them converted into responsible citizens as well. And as a result, we have a guest lecture series under the banner of Technovanza. So don't misunderstand us, but we always, bring a people like you to interact with these people and talk, and sensitize them about many more things other than technology, including technology. In fact, we have our own cultural festival called Pratibim. In that also we invite people, but this technical guest lecture series is far above, and we bring as a result we bring guys like you to interact with our bright minds and sensitize them about the world. So welcome aboard. Thank you very much. Thank you. So without any further ado, let's begin with the enlightening conversation that we all have gathered here for. Welcome, sir. This GLS has been conducted offline after almost 3 years now, and everyone here is duly excited for this conversation. So without wasting any more time, let's start with the conversation. Sure. Dear, gorgeous, vibrant, intelligent students of VJTI, the supreme happiness of life is the conviction that we are loved. Loved for ourselves, or say rather, loved in spite of being ourselves. I often quote these 4 magical lines from one of the classic novel titled Les Miserables, or Les Miserables as the French pronounce it, written by the great Victor Hugo. I repeat it. The supreme happiness of life is the conviction that we are loved. Loved for ourselves, or say rather, loved in spite of being ourselves. Thank you very much for loving me. You have shown your tremendous love, respect for a senior citizen like me, for an artist, for an actor, for a singer, anchor, director, whatever. But I would try my best to prove my worth, to gain your love and respect as a human being. That would be the greatest moment and day of my life. Thank you, To sir. gain your respect when you respect me as a human being. So my first question to you is that how did you discover that you are passionate about acting? और फिर आप सिर्फ acting पर रुके नहीं, you are acquainted with all the skills as a director, producer, singer and many more. So how did that happen? I don't want to
glorify my struggle or my hard work or the ups and downs of my life. But a matter of fact, I never wanted to be in this field. I was forced by the circumstances at a very early age, that is 50 years back, when I had to give up my studies due to financial crisis in the family. Different days, different era of Bharat, 51 years back. And frankly, my academic career was of 93% student. I was not an ordinary one. I wanted to do IAS or anything which is considered a respectable profession, because my father owned a theatre company, a folk theatre company, mobile folk theatre company, performing like vaudeville from one town to another town, 15 days in this town, for another day, 15 days in a small hamlet or a village of central India, Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan. So when he didn't have, when he couldn't afford my studies, further studies, I had to give up my study. And for next 2 years, I didn't know what to do. So I used to sell lottery tickets, started selling Churan ka note. And please don't be confused, I used to sell tea also, tea stall. And मिठाई का एक ठेला भी लगा लिया था, चाट पकौड़ी का एक ठेला लगा लिया था. So, and then one fine day my father said, if life is not taking you where you want to go, why don't you join my theatre company? Hence, somewhere at beginning of 73 or mid of 73, I joined my father's theatre company as an actor. And that day my mom cried, my mother cried, because she wanted to see me as an IAS, a respectable job. So, I'm not here in this city or in this film industry. I never had any passion. And you may find me a very boring person because I don't watch cinema, I don't watch TV, and I don't listen to the radio. And last but not least, I don't read newspaper. So I'm an ignorant bum and nothing else. I think after all the circumstances that you have faced and reached here, we still love you and we admire your work as all the professional roles you are here. So let's move on to the next question. Wherever I was or I am, will be, I have always done my best with utmost sincerity, honesty and passion. If I tell you, Mr. Patel, if I agree that I will wash your bathroom, believe me, none of these kids will be able to wash your bathroom the way Annu Kapoor can wash. अभी तो विदेशी भाषा में बात हो रही थी कि विदेशी भाषा इतनी प्रोमिनेंट हो चुकी है, उसको भी अभी धीरे धीरे खोलेंगे. आपके प्रेम की मदिरा के 2-3 पैग जब जाएंगे तो और जरा पेड़ जरा फिर अपने देसी भाषा में, मराठी भाषा में, गुजराती में, देसी खालिद मावड़ा में जा फिर बात होगी. अभी तो क्या है, अभी तो मुझे पहले शुरू में आप खड़ी तो मुझे ऐसा लगा हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में जाके बैठोगे. नहीं, मैं थर्ड स्पीकर था हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन को एड्रेस करने वाला. तो मुझे बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं, लोग सुनने को जहाँ तक तैयार है. बट आप जो भी बोल रहे हैं शिट मत बोलिए, अच्छा बोलो. अगर आपको किसी को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has given you right as a citizen of this country to criticize. You may criticize your Prime Minister, you may criticize your President, but the Constitution of India has not given you any right to abuse anyone. That's the difference between criticism and abuse. You
cannot abuse, you should not abuse. अभी तो खुला है, अभी जरा दारू के 2-3 पैक जाएंगे. दारू वो जो है आपके प्रेम से मिली है. देखो भाई, एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जब नशा ही करना है, नशा भी ऐसा मत सोचना कि शराब का होता है. स्त्री का कमाल का नशा होता है बेटा, ध्यान रखना. हाँ, ये देखो, आपने देखा सबके चेहरे कितने खिल गए. जरूर. हाँ, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि स्त्री के नाम से लड़कों के चेहरे खिल गए, और क्योंकि स्त्री का नाम लिया गया इसलिए लड़कियों के चेहरे खिल गए. लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती इधर उधर तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, लड़का लड़का और लड़की लड़की, तो वो बिल्कुल अलग एक जोन में चल जाते. लेकिन अभी थैंक गॉड के यहाँ पर लड़कियों के प्रति आकर्षित होने वाले और लड़कों के प्रति आकर्षित होने वाली लड़कियां बैठी, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम. स्माइल एंड लाफ. यू कैन डू दैट वंडर विदाउट मॉकिंग इट एनीवन. है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात. मैडम पूछिए. तो वही बात यहां से चली थी कि शराब का नशा नहीं है भाई. नशा स्त्री का हो सकता है, नशा सत्ता का हो सकता है, नशा पैसे का हो सकता है. नशे के अलग अलग रूप हैं, नशे के अलग अलग रूप हैं. वो क्या था कि नजद के रेगिस्तान में कैस नाम था उसका, जिसको आप लोग मजनू के नाम से जानते हैं. ये फोकलॉर है अरेबिया की. सो लैला 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 लैला, आइकॉनिक लव स्टोरी है भाई. ये तो है, रोमियो जूलियट से पहले की भी है. लैला मजनू, आज भी आप बोलते हैं लैला बन गई, मजनू बन गया, बोलता है. सो किसी ने, शायर ने लिख दिया, इस तरह इमेजिनेशन कर दी. कहने लगे भाई ये रेगिस्तान के जर्रे जर्रे से ऊपर वाले के कानों में लैला लैला आवाज पहुंच रही है. तो ऊपर वाले ने बुलाया, अपने एंजल को बुलाया कि जाके देखो कौन है यार ये. उसने आके बोला कि मजनू नाम का एक लड़का है, कैस नाम है. मजनू is an Arabic term which means madly in love. मजनू उसको बोलते हैं. थाने के पागल खाने का मजनू नहीं है वो. If someone is madly and passionately in love, वो मजनू है. अच्छी बात है. सो उसे एंजल ने जाके कहा कि जी एक लैला लैला चिल्लाता है. तो कहने लगे जर्रे जर्रे में से, एक एक पार्टिकल में से. अब मैं आपकी भाषा में भी बात करूंगा जल्दी, क्योंकि मैं बहुत साइंटिफिक चित्त का आदमी हूं, तो वो आऊंगा धीरे धीरे. उसने कहा कि जर्रे जर्रे में से एक एक पार्टिकल, खुदा को है अगर मिलना तो लैला बन के आ जाए. जी मैडम, क्या बात है. आई थिंक आपने यहाँ पे एक एंथुजियास्टिक वाइब क्रिएट कर दिया है, और वो सबके चेहरों पे दिख रहा है. अब सब कितने एक्साइटेड और खुश है. बिल्कुल खुश होंगे, अच्छा लगता है. जवानी तो इसी का नाम है, जवानी इसी का नाम है. रात भी, नींद भी, कहानी भी. ये फिर आप गोरखपुरी का शेर है. रात भी, नींद भी, कहानी भी. हाय क्या चीज है जवानी भी. क्या बात है. ये जितने भी आप कभी भी देखना कि जो भी आदमी, स्पेशली कोई पुरुष जो है, अगर उसके मुंह से कभी ये बात निकल आए, अरे सर हम तो दिल के जवान हैं, तो एक बात पक्की है, जवानी बाकी सारी जगह से गायब हो चुकी है. ठीक है, आप लोगों को कोई कहने की जरूरत नहीं. ये बुड्ढे टुड्डों का खेल है. अपनी हार को स्वीकार करना जो जल्दी सीख लेगा, जान लेगा कि आपकी लाइबिलिटी क्या है, आपके एसेट क्या है, उतनी मंजिल आसान हो जाएगी. अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पूछिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट योर डायरेक्टोरियल डेब्यू अभय? It was your first film that you directed and you received a national award for it. ऐसे ही चलते चलते मेरी एक दिन बहन के साथ बैठा हुआ था. एक ही बहन है मेरी, सीमा उसका नाम है. तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई. इत्तेफाक से उस कहानी को फिर मैंने पढ़ा. आप भी घर जाके पढ़िएगा. ऑस्कर वाइल्ड की वो कहानी है. कहानी का नाम है द कैंटरविल्स घोस्ट.
सो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और कुछ दिनों के बाद मैं श्री अमिताभ बच्चन और श्रीमती जया बच्चन के घर पे था, तो मैंने वो कहानी उन्हें सुना दी, ऐसे ही गपशप करते ना। उनको कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा बनाओ इसको। तो इस तरह से मैंने, वो मेरी चेयरपर्सन थी, बच्चों के लिए फिल्म बनाई थी। इसका नाम अभय रखा गया था। इसका जो थीम यही थी कि जो लोगों को डराता है असल में वो स्वयं डरा हुआ है। घर जाके बच्चे लोग, तुम लोग ज़रूर फुर्सत मिले तो जो भी किताबों का रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मूड हो, अच्छा लगे तो ज़रूर पढ़ना जाके, बाकी तो चलता रहता है। बाकी तो ज़रूर पढ़ना। कैंटरविल्स गोस्ट, CANTERVILLEGHOST, कैंटरविल्स गोस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड, ये ज़रूर पढ़ना। और जिनको मैंने कोट किया था विक्टर ह्यूगो के किताब का नाम है द मिज़रेबल, वो ज़रूर पढ़ना। सो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। और जो इंटरनेट के ऊपर जो है वो भी पढ़ना, और उसके बाद ओरिजिनल पढ़ना। तो पर्सपेक्टिव जो आपको मिलेगा वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। किसी एक पर्सपेक्टिव को पकड़ के कभी मत बैठ जाना ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना। पर्सपेक्टिव तो जब साइंस का भी डिफर कर सकता है तो बाकी ये टोटली क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ना है जी। आपने ऐसे ही एक कहानी लिख दी, लेकिन उसको नेशनल अवार्ड भी मिला और एक बड़ा अचीवमेंट भी बन गया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In your career, you have worked in more than 30 films and performed diverse roles, ranging from Gandhi in Sardar and Dr. Baldev Chadha in Vicky Donor. So my question is that which role did you find was the most challenging one for you? Every moment of life, every step of my life has always been a great and greater challenge for me, even to face you guys. I treat you very seriously. I cannot take you for granted. You are the future of this country. You are the vibrant of this country. Okay? You are the soul, body and mind and innovation of this country. I'm not, and I will never take you for granted, babies. I take everything so seriously. Well, my age, I wish I was 40 years younger now. But it's okay. Not a problem. Not a problem. I played Gandhi when this great film was made for great, the life and time of genius लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो गांधी को तो आना ही था। कभी एक्स्ट्रा जब टाइम हो तब बुलाना। तो अभी तो नया नया है, मैडम भी थोड़ा सा कि मेरे को क्वेश्चन खत्म करने, पटेल साहब पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। नहीं, by the way my wife is Patel from America, yeah, so गांधी का रोल मैंने किया। लेकिन उसमें भी उसमें एक चीज़, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट एक तरफ सरदार में मैंने गांधी का रोल किया, दूसरी सजाए काला पानी में वीर सावरकर का रोल किया मैंने। एक तरफ मैंने विक्की डोनर किया है, दूसरी तरफ कबीर, सेंट कबीर का भी रोल किया है। सो हम तो जो करेंगे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा करें कि दुनिया में वो कोई नहीं कर पाए। आपने इतने सारे रोल्स किए हैं, तो अगर आप अपने फेवरेट रोल के 2 डायलॉग सुना दे तो मजा आ जाए सबको। फ्रैंकली मुझे फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैंने अपने जितने भी डीप डाउन देयर आई एम अ सीरियस गाय। मेरा एटीट्यूड लाइफ के लिए, मेरा स्टडी, कुछ लोग बहुत सेंटिमेंटल होता है, सेंटी वाला आदमी है, ऐसा तो डोंट माइंड। सो मुझे
आप जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उनमें से किसी फिल्म को जिसने बहुत ज़्यादा सक्सेस है, विकी डोनर या ड्रीम गर्ल या जॉली LLB 2, यही है ना सारी फिल्में, इनमें से किसी का मुझे कोई ऐसा डायलॉग याद नहीं है। और कबीर का थोड़ा सा याद है, गांधी का 1-2 लाइन मुझे याद है, क्योंकि इनको डायलॉग को याद नहीं करना था। इनको जब तक आत्मा में नहीं बस जाएंगे तब तक आप बोल नहीं सकते हैं। सो अभी आगे बढ़ाओ तो फिर कभी याद आ गया तो मैं तो जो बोलूँगा वो ऐसा तो है नहीं कि मैं सोच समझ के यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने हैं। आई एम नॉट योर प्रोफेसर, प्रोफेसर इज पटेल साहब। मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, कुछ बताने नहीं आया हूँ, आपको कुछ लेसन देने नहीं आया, ना 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 ना, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। आपको जचे परवड़ता है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने घर में अपने। सो ऐसा अभी तो याद नहीं आ रहा है, और जो है भी जो याद है वो इतना गंभीर है बच्चों, इतना गंभीर है कि जब आपको मैं उस जोन में ले जाऊंगा तो अपने आप में ले आऊंगा। वो बहुत गंभीर बात है जो कबीर का जो लाइन है। तो अभी अच्छे अच्छे मस्ती वाले सवाल पूछो, उसी मस्ती के अंदर हम गंभीरता ढूंढ लेंगे और उसी गंभीरता के अंदर मस्ती ढूंढ लेंगे। हम तो वो है जो डिस्को में जाके भी राम भजन करेंगे और राम भजन करते हुए मीरा की तरह नाचेंगे। ध्यान रखना, हम तो भीड़ में भी अकेले होंगे और जंगल में भी ऐसा लगेगा कि हम सबके साथ हैं। ऐसा वो एटीट्यूड वो होना चाहिए आपको। जी आप पूछते जाओ, कोई आप घबराओ मत, आप तो बिंदास होकर पूछो। और जिस वक्त आपको लगे कि मैं थोड़ा सा हो जा रहा हूँ, आप बोलते सर एक सवाल बाकी था, तो मैं आप लैंग्वेज आप चुन लेना प्लीज, जिस लैंग्वेज में आप सुनना चाहते हो विचार। देखो हर भाषा जो है, हर भाषा का अपना फ्लेवर होता है, हर भाषा का अपना एक्सप्रेशन होता है। और भाषा जो है वो सोशियो पॉलिटिकल, रिलीजन, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, इन सारी चीज़ों का निचोड़ से बनती है भाषा। और मैं भाषा के मुद्दे के ऊपर आपको कुछ चलते चलते बहुत अहम बातें भी बताऊंगा जो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको दुनिया में कोई बताने नहीं आएगा। ये मेरे सारे जीवन भर की शोध है, रिसर्च है, ऑब्जर्वेशन है, पर्सपेक्टिव है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी आप तो पूछते जाइए। आपने इतने सारे प्रोफेशनल रोल्स में एक्सेल किया है एज एन एक्टर, डायरेक्टर एंड मैनी मोर, बट आप खुद को किस रूप में देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? हाउ डू यू लाइक टू व्यू योरसेल्फ? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं किस रूप में, मैं तो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आया हूँ और पैसा जहाँ मिलेगा वहाँ मैं काम करता हूँ, और जो काम करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ क्योंकि मैं डेडिकेशन के साथ करता हूँ। मैं तो पैसा कमाने का है, पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा ईमान है। लेकिन पैसे के लिए ना तो मैं चोरी करूँगा, ना आपका गला घोटूंगा, ना आपकी जेब काटूंगा, और ना ही अपने देश को बेचूंगा। सुन लो एक बार दोबारा, मेरा पैसा धर्म है, मैं पैसे की पूजा करता हूँ, परंतु पैसे कमाने के लिए मैं तुम्हारा गला नहीं घोटूंगा, चोरी नहीं करूँगा, जेब नहीं काटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। आ जाए लेक्चर के लिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, टेक्निकल लगा आपको चाहिए तो उसके लिए 1-2 असिस्टेंट लगेंगे, फिर बताता चलूंगा मैं आपको, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, सारे पसंद थे। अच्छा कभी कभी क्या हो जाता है कि मजबूरी के लिए भी आदमी को करना पड़ता है, लेकिन एक मजबूरी में भी मरते मरते भी, एक कहावत है हिंदी में, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, समझे ना। तो मरते मरते भी गंदी से गंदी फिल्म के अंदर जो किया है अपनी छाप छोड़ के गए बस। और बाकी तो हमारा क्या है यार, हम तो कोई खूबसूरत आदमी नहीं है, न शक्ल है, न सूरत है, न कोई पर्सनैलिटी है। तो बहुत स्लॉग करना पड़ता है आपको अपने को प्रूव करने के लिए। आप लोग सब खूबसूरत सामने बैठे हो, आपके लिए मंजिल आसान हो सकती है, हमारे गरीब के लिए मंजिल आसान कभी नहीं थी। बहुत स्लॉग करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए स्लॉग करना पड़ता है। मान लीजिए किसी के ऊपर मन आ गया, अब यार आप कैसे करोगे, सामने वाले के पास पता नहीं कमाल की कपड़े हैं और गाड़ियाँ भी हैं, और हम इसका मतलब है बाबू बंदे में बहुत टैलेंट होगा पटाने का, है राइट। बात बिल्कुल क्लियर है। आपके दिल जीतने का,
लोगों के सामने अपने वर्थ प्रूव करने का। मैंने आपसे कहा ना कि अभी तो आपने मुझे एज एन आर्टिस्ट बुलाया है, लेकिन आई विश आई कैन प्रूव माई वर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू टू अर्न योर लव एंड रिस्पेक्ट, एंड दैट विल बी द ग्लोरियस वन ऑफ द फाइनेस्ट डे एंड मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आपने अभी बताया कि आपने अपना एक्टिंग करियर एज अ थिएटर आर्टिस्ट अपने फादर के थिएटर कंपनी में शुरू किया, जी जी। और आपने सिल्वर स्क्रीन पे भी इतना काम किया है, तो हाउ डू यू थिंक दैट एक्टिंग एज अ थिएटर आर्टिस्ट एंड एक्टिंग ऑन द सिल्वर स्क्रीन इज डिफरेंट? ऐसा कहते हैं कि सिनेमा में आदमी बड़ा लगने लगता है, टीवी में छोटा हो जाता है, परंतु स्टेज पे आदमी आदमी लगता है। एक बार स्टेज पे जाने के बाद फिर रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए थिएटर और सिनेमा दो अलग अलग मीडियम हैं। इन मीडियम्स का इंपैक्ट व्यूअर्स के ऊपर भी बिल्कुल अलग पड़ता है। आप समझे मेरी बात? परंतु फिर भी बेसिक तो एक चीज है, डायलॉग आपको याद करने हैं और जनता को ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल रियल है। ये मेक बिलीव का वर्ल्ड है, यानी कि मैं जब एक कैरेक्टर निभाता हूं या कोई भी एक कैरेक्टर निभाता है तो उसको निभाने के चक्कर में अनरियल होता है, राइट? भाई मैंने डॉक्टर बलदेव चड्ढा का विक्की डोनर में काम किया, जॉली LLB 2 में एक जो नेगेटिव एक जो वकील था उसका रोल किया, ड्रीम गर्ल में पापा जी का रोल किया जो बेचारे लड़की के लिए कुछ भी बनने को तैयार है। यानी कि मैं तो वो नहीं हूं, परंतु मुझे अपने बेसिक रियल कैरेक्टर को छोड़कर एक अनरियल जोन में जाना पड़ा, ये दिखाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि अनरियल जोन में जाने के बावजूद मैं कितना रियल लगता हूं। यही एक्टिंग है, अनरियल को रियल बनाना, यही एक्टिंग है। आपने हमें एक्टिंग का एक नया इंसाइट दिया है, द डेप्थ ऑफ एक्टिंग। सो लेट्स मूव ऑन। यू हैव हैड द ऑनर ऑफ रिसीविंग 3 अवार्ड्स फ्रॉम लेट लता मंगेशकर जी, एंड यू आर द ओनली पर्सन टू रिसीव द विश्व हिंदी पुरस्कार फ्रॉम लेट सुषमा स्वराज जी। सो वुड यू लाइक टू शेयर एन एक्सपीरियंस अबाउट दैट? वेल, ताईगिरी येणार नाही, तुम्हाला मराठी माहिती आहे? ते गेली 6 February 2022. She was born on 28 September 1929 in the city of Indore in British India में। सो वो मेरी प्रोड्यूसर भी थी एक प्रोग्राम में जिसका नाम था, जिसको प्रोड्यूस किया था लता मंगेशकर, यश चोपड़ा, भरत भाई शाह, संजीव कोहली और मिसेस पैमेला चोपड़ा उस कंपनी के डायरेक्टर थे। उस प्रोग्राम का नाम था मेरी आवाज़ सुनो। सो लता मंगेशकर ने सिर्फ एक ही प्रोग्राम में टाइटल सॉन्ग गाया है और अपीयर भी हुई है, उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज भी है, वो मेरी आवाज़ सुनो। सो उसके 3 सीज़न हुए थे और तीनों सीजन्स में उन्होंने लता मंगेशकर ट्रॉफी लता मंगेशकर ने अन्नू कपूर को दी थी और उनका स्नेह आशीर्वाद मिला। उनका तो कमेंट ये भी था कि ये जब बोलते हैं तो स्वामी विवेकानंद की तरह बोलते हैं ना। मुझे किसी विवेकानंद की तरह नहीं होना, ना मुझे किसी ओशो की तरह नहीं होना है। मैं पूरी समग्रता के साथ अन्नू कपूर ही हो जाऊं, वही काफ़ी है। ये बची बात लता मंगेशकर ट्रॉफी की। अनंत शताब्दियों में कोई लता मंगेशकर पृथ्वी पे पैदा होती हैं। अभी नेक्स्ट 500 ईयर्स बाद आएगी आवाज़, ऐसी आवाज़ आती नहीं है, ऐसी गायकी, ऐसी आवाज़। और वो बहुत, और ऐसी लक भी था कि उनको वैसे ही म्यूज़िक डायरेक्टर मिले और वैसे ही गीतकार मिले। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। परंतु ये विदेश मंत्रालय ने मुझे हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जो 2015 में ये जो सम्मान मिलता है, किसी एक व्यक्ति को मिलता है, और
फिल्म इंडस्ट्री म्हणजे दक्षिण पश्चिम पूर्व और कहीं की भी फिल्म इंडस्ट्री में ये अवार्ड मेरे अलावा अभी तक किसी को नहीं मिला है। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रदान किया जाता है। अब इसकी विडंबना ये थी कि जिस वक्त ये अवार्ड दिया जाना था, वो कोई क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनेशन नहीं होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से एक लिस्ट आती है, शॉर्ट लिस्ट होती है, फिल्टर होती है और डिसाइड किया जाता है विदेश मंत्रालय के द्वारा कि किसको ये प्रदान किया जाएगा। तो वो एक डेट निश्चित की जाए। इत्तेफाक से उस वक्त मैं न्यूयॉर्क में तथाकथित एक भाषा को भूल दिया, और आप दूसरे की मातृभाषा पे ज्यादा ध्यान देने लगे। इंग्लिश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, नहीं इंग्लिश ऐसी बोलना कि येल और विस्कॉन्सिन और ऑक्सफोर्ड और का आदमी भी कह के यार VJTI के बच्चे बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, परंतु जब घर में आना तो जो भी आपकी मातृभाषा, जो मदर की भाषा, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मराठी हो, उसको कभी भूल मत जाना, क्योंकि ऐसा होने पे तुम्हारी इंडिविजुअलिटी है, पर्सनैलिटी नहीं। पर्सनैलिटी शब्द ग्रीक शब्द के पर्सोना से आया है। तो ग्रीक टाइम पे जब ग्रीक थिएटर हुआ करता था तो उसमें लार्जर ऑडियंस तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जो मास्क लगाया जाता था वो इस तरह से बनाया जाता, वो टेक्निक ये थी कि मास्क प्रोजेक्ट कर सके साउंड को, वॉइस को। तो वो मास्क जो होता था उसमें से एको रिवर्ब करते हुए आवाज जो निकलती थी, उस मास्क को पर्सोना बोलते थे। ये पर्सोना वर्ड ये था जिससे पर्सनालिटी बनी है, इसलिए पर्सनालिटी इज ऑलवेज ए फेक फिनोमेना। नोट इट, इंडिविजुअलिटी इज मोर ओरिजिनल। पर्सनालिटी, अरे क्या पर्सनालिटी है, क्या पर्सनालिटी, कौन सी पर्सनालिटी है? अंदर जाके कभी तुमने देखा है? बड़े बड़े लोगों की पर्सनालिटी देखने के बाद ये पता चला कि अंदर से तो बहुत घटिया आदमी है, समझे आप? इसलिए इंडिविजुअलिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं अपनी मातृभाषा की वजह से मुझ पर किसी का ध्यान गया, और यही मैं चाहूँगा। If you behave, you see what happens when zebras, if they lose the stripes from the body. अगर ज़ीब्रा के शरीर पे से वो स्ट्राइप्स हटा दिए जाए तो टट्टू, खच्चर और गधे में कोई फर्क नहीं होगा। नहीं ना, सही बात है ना? अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखना, बेहतरीन जाना। मैं कह रहा हूँ, आप तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, जाना, काम करना, अभी तो पूरा वर्ल्ड, पूरी जिंदगी आपके सामने अनफोल्ड होनी बाकी है। लेकिन जब लौटना तो बा से या आई से या माँ से वही पूरन पोली बना दे, धामना बना दे, फाफड़ा बना दे, ठीक है ना? ये आपकी इंडिविजुअलिटी है। इंडिविजुअलिटी को कभी मत जाने देना। मस्ती करना कोई प्रॉब्लम, मस्ती करने से नहीं रोक रहा। आपने देखा, मुझे एक बात बहुत, ये कुछ भी बोल, आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड आई डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन। आई एम एन एथीस्ट, डिक्लेयर एथीस्ट टू। I don't belong to any political party, but I like that the Prime Minister of this country, whenever he has free moments or he ensures that he gets those free moments, he goes to his mother to take his blessings, to take her blessings and to share a meal with. बहुत बड़ी बात है बाबू, बहुत बड़ी बात है। भारत का प्रधानमंत्री अपनी जननी, अपनी माता के पास जाके पैर छूता है और एक खाना खाता है माँ के साथ। और ऐसा नहीं कि पूरा परिवार बैठा हो उसके सामने, माँ के लिए है वो, ठीक है ना? मुझे मालूम नहीं आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है नहीं है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ही डिजर्व द बिग अपलॉज फ्रॉम द VJTI। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इंग्लिश इज एन ऑनरेबल लैंग्वेज, बट हमारा अपनी मातृभूमि और मातृभाषा से नाता कभी नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जी और बोलिए, जी आप पूछते रहिए आप तो। मेरा अगला सवाल है, सिंस द COVID-19 आउटब्रेक देयर हैज बीन अ ग्रेडियंट शिफ्ट दैट
अभी लोग ट्रेडिशनली सिनेमा हॉल्स में जाके सिनेमा देखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, अपने घर पे बैठ के OTT प्लेटफॉर्म पे देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस शिफ्ट में आपके लिए काम करना कैसा था? वॉज इट कन्वीनियंट फॉर यू और हाउ डिड इट अफेक्ट? देखिए, मुश्किल तो सबके लिए थी। मैं तो बहुत छोटा सा एक मामूली सा आर्टिस्ट हूँ। बड़े लोगों की बड़ी मुश्किलें होती हैं, छोटे लोगों की छोटी मुश्किलें होती हैं। बड़े लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, छोटे लोगों की गलती इतनी फेटल नहीं होती है। मुश्किल सब, आपके पेरेंट्स को भी मुश्किल हुई होगी। सो एक ही कंसोलेशन था, वी ऑल सेल थ्रू इन द सेम बोट, राइट? और अपन सब एक बोट कश्ती के सवार थे, एक ही नाव में सवार थे, और किस तरह से सेल करके निकलना है, उसको कैसे पार करके उस दरिया को निकलना है, बस यही सीखा है। और क्या सीखा है? मुसीबतें तो आती रहेंगी। अभी अभी बच्चे हो बेटा आप लोग। आप में से सबसे कितने, पटेल साहब कितनी उम्र के होंगे? 22-23, इतने ये उम्र के। अभी पूरी जिंदगी खुली पड़ी है यार, अभी रिस्क लेने की उम्र है, पूरी जिंदगी खुली पड़ी है। अभी जिंदगी के धक्के नहीं खाए हैं आपने। जब धक्के खा के यहाँ पे पहुंचोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है यार, चले कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा। सो सबको मुश्किलें आई और मुश्किलें टल गई हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा सावधानी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन लो। और पैंडेमिक की बात आपने पूछी तो मैं आपको एक बात बता दूं, दिस इज, आप सब टेक्निकल स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट माइंड हो, पर क्रिएटिव इनोवेटिव माइंड इंडिया का यहाँ पे बैठा हुआ है। आपको मालूम है, आपके हिसाब से मैडम, ये कोविड-19 में फेटलिटीज कितनी हुई होंगी अपने भारतवर्ष में, अंदाज से, जस्ट अप्रॉक्सिमेट? Around 3 million, as I have heard in the news. 3 million? Yes. Means 30 lakhs, right? Well, for your kind information, the large scale pandemic which started from February 1918, which got ended somewhere in April 1920. Do you know how many people died from our country? 120 million people. But that was hidden from you. Why? Because that was the time of First World War. And we were the slaves of British. Right? And British, and our some political leaders also, encouraged all Indians to go and support our masters, the Britishers, the English people, the English forces, English armed forces. तो उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजों की तरफ से लड़ो, जाके उनका साथ दो। तो हम भारतवर्षवासी जो थे, ब्रिटिश लोगों के गुलाम थे। और उसी टाइम के ऊपर ये पेंडेमिक में 1,20,00,000 भारतीय मर गए हैं। लेकिन ये बात छुपा दी गई। छुपा क्यों दी गई? वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट नंबर का वर्ल्ड वॉर। अगर ये बात ये रिवील हो जाती, ये सीक्रेट ओपन हो जाती, तो मॉरल डाउन हो जाता। भारत के कुछ सैनिक, जो आर्मी के जो लोग थे, भारत बहुत सारे लोग थे, वो विद्रोह कर सकते थे। इसलिए तुम लड़ते रहो, मरते रहो, तुम्हारी मां मरे, बाप मरे, भतीजा मरे, बहन मरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ब्रिटिश सरकार ने किया था आपके साथ, आपसे छुपा दिया गया। 1,20,00,000 मरे। और कमाल की बात यह है कि जब ब्रिटिश को सपोर्ट करना है तो एक व्यक्ति कर रहा है, आप उनके साथ लड़िए, उनका साथ दीजिए, ब्रिटिश लोगों का सहारा। और जब भारतवासियों को ब्रिटिश का सामना करना पड़ता तो वह आदमी अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। सोचना, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जब तक रैशनल पर्सपेक्टिव के साथ आप सोचोगे नहीं, आपको सत्य कभी नजर नहीं आएगा। जी मैडम। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। मैं तो आगे बढ़ता ही, मैं तो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के ऊपर चला जाऊंगा। आगे तो बढ़ना ही है, पीछे तो The 13-year-long show Antakshari that you have hosted for 12 glorious years
और उस शो की वजह से लोग आपको इतना जानने लगे हैं दैट नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट पीपल फ्रॉम अब्रॉड टू अडोर यू एज द म्यूजिक मैन ऑफ इंडिया। तो क्या आप उस शो के बारे में कोई स्पेशल मेमोरी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं तो अभी भी अपने आप को स्ट्रगलर मानता हूँ, लेकिन स्ट्रगल की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। बेसिक स्ट्रगल तो वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए होता है। उसके बाद जब रोटी मिलने लगती है तो फिर ये होता है रोटी के ऊपर थोड़ा घी आ जाए, कपड़ा मिलने लगता है तो फिर क्या थोड़ा अच्छी ढंग का कपड़ा आ जाए, मकान मिलने लगता है तो फिर कहते हैं 1 बेडरूम से 2 बेडरूम। तो आदमी की इच्छाएं जो है बढ़ती चली जाती है। मैं दोष नहीं दे रहा आपको भाई कम का, लेकिन ये मानव चित्त है, हमारी ह्यूमन साइकी है ये। तो मैं स्ट्रगल का पीरियड था 6 अगस्त 1993 को अचानक एक प्रोग्राम जिसका मैं मई के अंदर यही माटुंगा माहिम के अंदर किसी स्टूडियो में प्रोमो रिकॉर्ड किया था, वो कर चुका था। फिर 2-3 बार डेट लेके छोड़ दिया था और बहुत ही लीन पीरियड से मैं गुजर के आया था। और तब मुझे 2-3 काम मिल रहा था तो मैं उसमें बहुत अच्छा थोड़ा सा गाड़ी चल पड़ी थी। ऐसे टाइम के ऊपर ये मुझे मैसेज मिला और मैं यहाँ पर जब आप जुहू तारा रोड से अगर आप निकल के कभी आओगे जुहू की तरफ से वापस अपने सेंटा क्रूज की तरफ, तो आप आते वक्त जब देखोगे तो आपके राइट साइड के ऊपर, जब जुहू से आप सेंटा क्रूज की तरफ आ रहे होगे, जुहू तारा रोड राइट साइड के ऊपर ज़हर ब्यूटी पार्लर हुआ करता। तो एग्जैक्टली 6 अगस्त को मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दी थी असरानी साहब ने। सो वहाँ पर मुझे गया, मैंने कहा लाओ यार थोड़ा सा, पार्लर में गया और वहाँ पे बैठा आधा पौन घंटे के बाद फ़ोन आ गया कि सर ये है। मैंने कहा यार मैं आज तो नहीं आ सकता क्योंकि कल तो मेरी शूटिंग है। नहीं आप आइए प्लीज़, वो रोना धोना जो भी चलता है। तो मैं वहाँ पर चला गया और एक मैडम थी, नाम तो मुझे याद है उनका, लक्ष्मी लारोइया उनका नाम था। उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी। उन्होंने कहा कि मैं कहना अनु जी आपने हमको धोखा दिया। मैंने कहा आप आगे से ये बात कभी बोलिएगा, अन्नू कपूर ने ना कभी किसी को धोखा दिया ना कभी धोखा देगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपने स्क्रिप्ट लाके दी है ये तो बड़ी बकवास सी स्क्रिप्ट है। मैं जो बोलूँगा वो ब्रह्म वाक्य है। मंजूर तो मंजूर, नहीं तो मैं अभी जाता हूँ। वो क्या बोलेंगे? मैंने कहा लेकिन आप घबराइए मत, अगर आपने मेरी बात पे विश्वास किया तो आपको कभी कोई पछतावा रिग्रेट नहीं होगा, जस्ट ट्रस्ट मी। एंड दे डिड। They did. For 12 years, Antakshri set the precedent in this country, in other countries as well, कि म्यूजिकल शो को होस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मैं तो जो अपना काम समझ के कि क्या चल रहा है यहाँ, और सिर्फ मुझे अपने को सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं करना है। प्रोग्राम अगर हिट है तो आप भी हिट हो जाओगे। आपके कंधे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को संभालना बहुत ज़रूरी है। आए बहुत सारी वो होस्टेस लेके आ जाते थे कि चेंज चाहिए। मैंने कहा सबसे बड़ा तो चेंज ये होगा कि इसको निकाल दो। जब 93 6 अगस्त को ना, तो मैं 37 ईयर्स का हो चुका था और सबसे बड़ा चेंज तो ये होगा कि आप मुझे निकाल दें। लेकिन उनको मालूम था जिस इमारत की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है उसके ऊपर आप कितने ही फ्लोर बना सकते हैं। सो दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ अंताक्षरी, समझे आप। तो आते थे, कुछ अच्छी होस्टेस आई, कुछ दुराग्रह लेके आई, कुछ को लगता था, प्रेस ने भी बोलना शुरू किया अन्नू कपूर तो बोलने ही नहीं देते हैं किसी को। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कभी कोई कीड़ा नहीं रहा है बोलने का। क्यों? ये दे फिर बोलूंगा। लेकिन हर जगह तो इसकी बात नहीं होती। पटेल साहब आपने तो कुछ नहीं, मैंने तो आपसे कुछ नहीं लिया। बड़ा प्यार था। ये ऋषभ बच्चा आया था, मैंने फिर मेरी टीम के सचिन तेलंग और कोमल लल्हार, मैंने इनके हवाले कर दिया आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको। डूज एंड डोंट्स
और इतने प्यार से बुलाओगे तो कौन नहीं आएगा यार, इतने प्यार से बुलाओगे तो सब आ जाएंगे। आप ना सिर्फ एजुकेटेड बच्चे हो, आप वेल मैनर्ड बच्चे हो। वेल मैनर्ड होने का मतलब ये नहीं कि क्लास में बिल्कुल संत शिरोमणि होकर बैठ जाओ, ये मतलब नहीं है। लेकिन कहाँ आपको अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए। मैं बहुत नॉटी स्टूडेंट हुआ करता था, मैं बहुत नॉटी स्टूडेंट हुआ करता था, बहुत शरारती था मैं। अरे यार, आप शरारती नहीं होगे तो क्या हम शरारती होंगे? नहीं, आपको शरारत करो, मस्ती करो, उधम करो, लेकिन जब क्लास में जाओ तो पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई करते वक्त मस्ती की मत सोचना, और मस्ती करते वक्त पढ़ाई की मत सोचना, या फिर ऐसा कर लो, मस्ती में मस्ती है और पढ़ाई में भी मस्ती है। अगर ये कर लिया तो बाबा क्या बात है। सो दैट्स इट। अंताक्षरी हो गया। अंताक्षरी ने मेरा फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ा दिया। आप जैसे, आप तो 22 साल 23 साल का कौन है, 23 ईयर्स का तो कोई नहीं, तो नहीं, आप में से कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो आप, अगर आप अपने पेरेंट्स के सबसे छोटे हैं तो उनकी शादी हो चुकी होगी, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के सबसे बड़े बच्चे हैं तो शायद आपके पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई होगी। तो आपके पेरेंट्स ने मुझे देखा, घर पे जाके पापा मम्मी से पूछ रहा कि क्या कभी अन्नू कपूर ने आपका मनोरंजन करने के लिए अश्लील, सस्ती, वल्गर बात कही क्या? ना, वो नहीं। मनोरंजन किया, ठुमके लगाए, लेकिन समाज और देश के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी थी उसका हमेशा ख्याल रखा, हमेशा ख्याल रखा। सर, आपने अंताक्षरी शो को 12 इयर्स होस्ट किया है और उस शो में 4000 से ज़्यादा गाने गाए गए थे। जी जी। और आप, हम सब जानते हैं कि आप एज अ सिंगर भी कितने फेमस हैं। तो आप आज एक गाना सबके लिए सुना दे प्लीज़। अच्छा देखो, मेरे रेpertoire में जो गाने हैं वो ओल्ड मेलोडीज़ हैं, लेकिन अंताक्षरी में भी यकीन मानना, मैंने गाना वो गाया जो मुझे पसंद था, जो मुझे पसंद है वो गाना गाया। ऐसे सनकी और एड़े आदमी से कोई गाना नहीं गवाएगा, मैं कहा ए भाई ए चलना तेरा गाना। सो थोड़ा सा मैं जाट बुद्धि तो हुई डेफिनेटली। सो गाना वो गाता था जो मुझे अच्छा लगे। अच्छा, जो मुझे अच्छा लगे उस गाने में कुछ ऐसा हो कि वो आपको अच्छा लगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैंने जो गाया पूरे कन्विक्शन के साथ गाया। एक बात ध्यान रखना कि जब आप मस्ती के मूड में होते हो तो आपका ध्यान म्यूजिकल नोट्स की तरफ जाता है, लेकिन हल्की सी जहां चेतना दिल में एक, अच्छा ईमानदारी से बता देना, ये याद दिला देना मैं क्या दिल की बात कर रहा था। छुपे हुए जो जज्बात हैं, जो आप सबके लिए आशीर्वाद के वचन हैं, आप सबके लिए मैं ब्लेसिंग देके जा रहा हूं। देखो रोमांटिक गाना गाके, ये है भारतीय पर, ये है इंडियन पोइट्री का कमाल। आंचल में सजा लेना कलियां। मेल सॉन्ग है तो तुम सोच लेना, मेरे बच्चों जो लौंडे बैठे हुए यहाँ पर, वो सोच लेना कि तुम नहीं हो, तुम इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप रोमांटिक हीरो हो। हाँ ठीक है। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। ऐसे ही
कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना, आंचल में सजा लेना कलियां। आया था यहाँ बेगाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा। आया था यहाँ बेगाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा। दीवाने की खातिर तुमको ही इल्जाम ना अपने सर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना, आंचल में सजा लेना कलियां। रास्ता जो मिले अनजान कोई, पे द अटेंशन, रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई। रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई। अपने को अकेला जान के तुम आँखों में आंसू भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना, आंचल में सजा लेना कलियां। So, अगर ये राग यमन में, राग यमन हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख राग है, उसको आधार मान के ओपी नैयर की स्मृति में जोरदार तालियां तो यंगस्टर्स की। और एस एच बिहारी ने इस गीत को लिखा है, तो उनके लिए भी ताली। ऐसा देखो, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कि बुझते दिए को न तुम याद करना, हुए एक बीती हुई बात हम तो, हुए एक बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पे न बर्बाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। So, अगर पॉसिबल होता तो हम ये कॉन्वर्सेशन और चलने दे सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर टुडे वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. सो माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट what is the best piece of advice that you received in your life which you would like to share with all our students? When you merely and only study to get a job or achieve success in this examination without understanding the knowledge, the intricacy of knowledge, then in spite of becoming big CEOs or big people, you will remain a duffer. I don't want to be a duffer. So study for yourself. Don't mug up the theorems
whether you are studying the algebra or the trigonometry or geometry, I don't know, it's long time, अभी तो पता नहीं algorithm, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही, but study for yourself. मेरे एक टीचर ने एक बार मुझसे पूछा, पूरी क्लास से पूछा था, न्यूटन का लॉज, मैं I've got a scientific psyche, ये बहुत वैज्ञानिक चित्त का व्यक्ति हूँ, तो अपने लिए पढ़ना. उन्होंने पूरी क्लास से पूछा न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन बताओ क्या है. सो सब ने फर्स्ट बताया और थर्ड बताया, सेकंड कोई बता नहीं पाया, तो एक के बाद एक मिस्टर आयरन का नाम था, वो सबको खड़ा किया और विद सो मच प्राइड ही सेड अब अनिल बताएगा. इंसिडेंटली मेरा नाम अनिल था, अनिल कपूर था मैं, लेकिन यहाँ पे अनिल कपूर जो हीरो थे वो मुझसे सीनियर थे, तो किसी एक को नाम चेंज करना, वो बड़े बाप का लड़का है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैंने कहा अपना नाम चेंज कर, कोई प्रॉब्लम कर, नाम में क्या रखा जी, आपको अच्छा लगता तो ले लीजिए. पता नहीं कल के दिन आपको कोई उसामा बिन लादेन बोले तो क्या होगा. सो जब मुझको पूछा कि उन्होंने बड़े नाज के साथ, गौरव के साथ, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के साथ कहा अनिल बताएगा, मैं खड़ा हुआ और मैंने भी फर्स्ट और थर्ड बताया, सेकंड मैंने भी नहीं बताया. सो माय गुरुजी फिजिक्स के थे, he moved forward and he slapped me hard on my cheek, and I could feel the fury in his eyes, and he left the classroom. And I went to the teacher's chamber to apologize, but he refused to meet me. I came back to the hostel and I cried a lot. इसलिए नहीं कि मैं बता नहीं पाया था, इसलिए कि मेरे गुरु ने मुझ पर विश्वास किया, मैं उनका विश्वास तोड़ दिया था. मैं सारी रात भर सो नहीं पाया और केवल न्यूटन के लॉ, सेकंड लॉ को मैं समझता रहा, याद करता रहा और कहता रहा कि गुरुजी अब जब मैं मिलूंगा तो मैं बताऊंगा कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है. मैं कभी भूल नहीं सकता ये, क्योंकि मैंने अपने लिए याद किया, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ना. Do you know the last words of great physicists and great mathematicians are Isaac Newton? मैं दीवाना हूं, हर उस साइंटिस्ट का दीवाना हूं जिसने मानव जाति के कल्याण के लिए नई नई चीजों का आविष्कार किया. निकोला टेस्ला का दीवाना हूं, अल्वा एडिसन का दीवाना हूं, मदाम क्यूरी का दीवाना, पियर क्यूरी का दीवाना, इवान पावलोव का दीवाना, सिगमंड फ्राइड का दीवाना हूं, कार्ल गुस्ताव यंग का. हर उस व्यक्ति, साइंस के उस व्यक्ति ने, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैथमेटिशियन हो, जिसने भी समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कुछ प्रयत्न किए, कुछ नया इजाद किया, नया खोजा, आविष्कार किया, नई डिस्कवरी की, मैं उसके चरण में प्रणाम करता हूं और किसी के चरण में झुकना नहीं चाहता है. कोई धर्म, दुनिया के कोई किताब, किसी धर्म की कोई किताब किसी चीज का उत्तर नहीं देती है, बस बड़ करते रहते हैं, उत्तर सॉलिड किसी के पास नहीं है. समझे आप? Do you know the last words of Isaac Newton? वो समझ लेना तुम लोग. I do not know what I may seem to the world. नोट कर लो ये, और तुमको मिल भी जाएगा वहां पे. I don't know what I may seem to the world, but as for myself, I have been like a boy on a seashore, diverting myself now and then in finding a smoother pebble and prettier shell, than ordinary, whilst the great ocean of truth all lay undiscovered before me. सीखना कभी बंद मत करना. VJTI से निकलने के बाद सीखना मत बंद, जिससे भी मिले उससे सीख लेना. यही तुम्हारे ज्ञान का. इस वक्त कल जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे, इसलिए कि पापा ने सीखा है. सीखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ धर्म की पुस्तकें पढ़ने लगे. विज्ञान ही भगवान है, भगवान सिर्फ अनुमान है. तो भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, उसको पर्सनल बना के रखना. इस दुनिया में जितने नरसंहार धर्म के नाम पर हुए हैं, उतने वैज्ञानिकों ने नहीं किए हैं.
तो तुम लोग VJTI के स्टूडेंट्स हो, यही मेरी एडवाइस है, पढ़ना अपने लिए पढ़ना, सीखना अपने लिए सीखना, और सीखना तो वो चीज तुम्हारे ब्लड में चली जानी चाहिए कि रात को कोई भी किसी भी समय, आज से 40 साल बाद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें याद रहे कि मैं आज के दिन तुमसे क्या बोल के गया था। वो है सीखना। अध्ययन, मनन, चिंतन, स्टडी एंड कंटेम्पलेट, एंड देन अगली बार का बताऊंगा, स्टडी कॉन्टेम्पलेट के बाद एक और पड़ाव आता है, सब एम्प्टी कर देना। वो के लिए तुमको आइंस्टीन बनना पड़ेगा। वो चर्चा बाद में। बड़े प्रेम और शांति के साथ आपने सुना। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आपने जो लाइफ लेसन्स आज दिए हैं, जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, अपने किस्से बताए, वो मुझे नहीं लगता था कि अब आज कोई भी यहाँ से भूल के जाएगा। I think I am speaking on behalf of this entire audience here that this was a wonderful session and we are so glad कि आपने हम students की request का मान रखा और आप यहाँ आए. This was a late evening and now I request Sai and Avni to present you with a memento of this wonderful evening.